Assalamu alaikum everyone. वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। Please turn off your mic, everyone. Let me clear you few things, class. That this online digital forum is being checked by the IT team members and the senior department of the university. So you guys have to behave in a very well way. ठीक है? Because they can easily block you or they can take any strict action against your immature attitude. So please maintain the decorum of the online class and respect each other here. And please turn off your mic. Umar, you can turn off your video. There is no need to turn on the video camera. Okay, Hamza Shaukat, you have to take the attendance. I have recorded the names of the students who are present right now, but you also have to take the attendance and then you have to share it with me. ओके मैम। Okay. So thank you so much everyone for joining the class, and plus most of you submitted the assignment, but the assignment was very badly copy pasted. ठीक है? In the Google Classroom, we can easily check the plagiarism rate, and most of the assignments were, 100% showing the result of 100% plagiarism. So at least try to do something on your own and try to write something, from your own brain, using your own brain. You can read anything from the website and just you can rewrite the thing in your own words. At least do some effort. Just don't copy paste it. एक्सक्यूज मी मैम। जी मैम ये लास्ट टाइम जब लेक्चर हुआ था ना तो तब भी बच्चों ने ये कहा था कि ये मैम जरा इंग्लिश में एक्सप्लेन करती हैं, तो जिस तरह क्लास में होता है ना उस तरह कर दें प्लीज, ताकि समझ आए सबको। जी जी ठीक है, नो इशू एट ऑल, नो इशू एट ऑल। जी थैंक ठीक यू। है, वी कैन यूज बोथ मीडियम। हाँ ओके ओके, आई रियली रिस्पेक्ट योर पॉइंट ऑफ व्यूज, और जब आपको मौका दिया जाए तो आप लाजमी जो भी आपका क्वेश्चन है, जो भी क्वेरी है, वो लाजमी रेज करें। ठीक है? Okay, so today we'll be covering the topic scaffolding. I want all of you to listen to it very carefully. I have made a presentation on it. और presentation जो है वो easy है, आप लोगों को आराम से समझ आ जाएगी। ठीक है? तो if you want to take notes you can, अगर आपका दिल चाहे तो लेने तो चाहिए जैसे आप लोग क्लास में लेते हैं। तो plus I'll be sharing with you the presentation too by the end of the lecture. ठीक है? Umar, please turn off the camera because then it will compromise your audio quality. Okay, can you see the screen? Only one student can respond. कोई एक बच्चा बता दे. यस मैम। Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Okay. Okay. Yes, ma'am. And please turn off your mic, everyone. Okay. Can you see now? Yes, ma'am. Okay. So the today topic is scaffolding. किसी को idea है scaffolding क्या होती है? नो Yes, मैम। ma'am. Yes, ma'am. पता है. Yes. किसको पता है? मैम मुझे. Who's responding? I cannot see your मैम name. अनस. Anas, हाँ जी बताएं Anas, what is scaffolding? मैम जिसके थ्रू जो लेबर होती है
वो आपकी हाई राइज बिल्डिंग जो होती हैं उनको क्या कहते हैं कंस्ट्रक्ट करती हैं। स्कैफोल्डिंग अच्छा पाइपिंग शेप मटेरियल होता है जिसको हम रिवर्ट जॉइंट से जो है ना उसको स्टेप बाय स्टेप बाय फ्लोर जो उसका ना हम हाँ कंस्ट्रक्ट जी। करते हैं। अच्छा अच्छा, ये आप बीबीएससी स्टूडेंट से पहले ये पढ़ा हुआ है? मैम पढ़ा हुआ तो नहीं है, वैसे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है। अच्छा जी। एनीवन एल्स हु वांट टू ऐड अ लिटिल बिट टू इट? किसी को कुछ और पता हो इसके बारे में? थैंक यू सो मच अनस फॉर योर कंट्रीब्यूशन। थैंक यू। मैम ये टेम्परेरी स्ट्रक्चर होता है ना जो सपोर्ट करता है वर्क क्रू को, मटेरियल्स को कंस्ट्रक्शन के लिए। ये उसामा भट्टी बता रहे हैं? जी मैम। ओके जी उसामा, बिल्कुल आप ठीक बता रहे हैं। एनी अदर पॉइंट? मैम इतना ही पता है। जी ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर कंट्रीब्यूशन। आई मैम वांट दिस टू बी अ वेरी आई वांट दिस टू बी अ वेरी इंटरेक्टिव सेशन के मैं भी 50% कंट्रीब्यूट करूं और आप भी 50% कंट्रीब्यूट करें, जैसे हम क्लास में करते हैं। ठीक है, जी तो मैम। यही प्रैक्टिस हम यहाँ ऑनलाइन लेक्चर में भी रिपीट करेंगे। श्योर मैम। ओके सो जिस तरह हमें अनस ने और उसामा भट्टी ने बताया, प्लीज टर्न ऑफ योर माइक। जिस तरह हमें उसामा भट्टी ने और अनस ने बताया है, बिल्कुल ठीक बताया है। तो हम इसको जो है इसके बेसिक्स को कवर करेंगे एज दिस इज योर सेकेंड ईयर लेवल। और इसमें वी यू ऑलरेडी नो दैट वी कवर द बेसिक्स एस्पेक्ट ऑफ एनी टॉपिक। हम बेसिक्स को लेके चलते हैं साथ। तो हम इसके फोल्डिंग देखेंगे कि क्या होती है और कंस्ट्रक्शन में इसका कैसे यूज होता है और इसके क्या क्या और मजीद यूजेजेस हैं। ठीक है, ओके। एज अनस टोल्ड अस दैट ये पाइप्स के थ्रू होता है, जॉइंट्स होते हैं इसमें। आप लोगों को पता ही है कि जब कंस्ट्रक्शन होती है तो जिस तरह अनस ने बताया था कि स्टेप बाय स्टेप फ्लोरिंग पे जब हमने बाहर से काम करना होता है तो हम क्या करते हैं, टेम्परेरी स्ट्रक्चर, उसामा भट्टी ने जैसे वर्ड यूज किया, बहुत अच्छा वर्ड था। टेम्परेरी स्ट्रक्चर जो है हम वो साथ उसके बिल्डअप कर देते हैं। ठीक है, ताकि हमारे लिए, हमारे लेबर्स के लिए बहुत ईजी हो जाता है काम करना, स्पेशली इन द हाई राइज बिल्डिंग्स। ओके सो वील मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। Okay. Who will read this? Hamza Shaukat, please read the definition. Okay. Scaffolding, also called scaffold or staging, is a temporary structure used to support a work crew and materials to aid in the construction, maintenance, and repair of buildings, bridges, and all other man-made structures. Okay, thank you. As Anas and Osama Bhatti have mentioned that they are used, they are a temporary structure and they're used for construction, लेकिन इसके और भी usages होते हैं। अगर आपने किसी बिल्डिंग की मेंटेनेंस करनी हो और वो उसकी हाई राइज हो या वो 4-5 फ्लोर्स पर हो, तो तब भी हम इसके फोल्डिंग का यूज करेंगे। अगर हमने बिल्डिंग को बाहर से रिपेयर करना है तो ऑब्वियसली वी नीड अ टेम्परेरी स्ट्रक्चर जिसपे हम जाके हम अपना मटेरियल साथ लेके जाके हम वहां पे खड़े होके काम कर सकें। ठीक है, इसी तरह ब्रिजेस की और भी जो भी मैनमेड स्ट्रक्चर्स है उनकी बेशक हमने रिपेयर करनी हो, बेशक हमने मेंटेनेंस उसकी करनी हो या कुछ भी करना हो, तो वी ऑप्ट फॉर स्कैफोल्डिंग। राइट? राइट मैम। ओके शाहजेब, आप यूजेज जरा प्लीज लाउडली रीड आउट करें। Scaffolds are widely used on site to get access to heights and areas that would be otherwise hard to get to. Unsafe scaffolding has the potential to result in death or serious injury. Scaffolding is also used in adopted forms for formwork and short grandstand, ceiling, seating, concert stages, sets and viewing towers, exhibition stands and art projects. ओके, कैन यू प्लीज टर्न ऑफ योर माइक? किसका जो बोल रहा है उसके अलावा बाकी प्लीज अपना माइक जो है वो मैम ये शाहजेब ये बंद। गाड़ी में बैठा हुआ ड्रामे कर रहा है। ओके so as Shahzeb has told us the different usages of the scaffolds, ठीक है, scaffold as I've told you earlier कि scaffold सिर्फ construction के अलावा भी इसके बहुत से चीजों में यूज होता है। ठीक है, लेकिन अगर अनसेफ स्कैफोल्डिंग हो तो ये बहुत जो है इट इज वेरी इंजूरियस टू जो है ना, इट्स वेरी रिस्की। आपकी ऑब्वियसली अगर आपका जो टेम्परेरी स्ट्रक्चर है, अगर आपने अपनी जहाँ पे आप अपनी साइड पे काम कर रहे हैं, इट इज नॉट यू नो स्ट्रॉन्ग इनफ, तो अगर आप 4th फ्लोर पर हैं और काम कर रहे हैं, इफ यू फॉल डाउन यू कैन इमेजिन कि क्या उसके रिजल्ट्स होंगे। ठीक है, तो स्कैफोल्डिंग शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड प्लस एज मेंशन्ड अर्लियर
कि ये जो है डिफरेंट जगहों पे यूज होती है, ठीक है। आपने टॉवर्स की कंस्ट्रक्शन करनी हो या उसकी रिपेयर करनी हो, आपने डिफरेंट जाइगेंटिक किस्म के जो आर्ट प्रोजेक्ट्स होते हैं, हमारे स्कल्पचर जो बनते हैं, तब भी जो है साथ साथ उसके आउटर शेल पे काम करने के लिए स्कैफोल्ड्स के थ्रू ही उस हाइट तक जो है वो हम रीच करते हैं और फिर सारा अपना काम करते हैं, अपना मटेरियल लेके जाते हैं। ओके, ओके मैम। इज उसामा इमरान प्रेजेंट इन द क्लास? उसामा? Yes, ma'am. I'm present. ओके, ठीक है। नरमीन? मैम नरमीन नहीं है। मैम नरमीन वो बिजी होती है, उसने बताया था वो। हम्म। मैम वो वो सो रही सो रही होती होती है, उसकी नींद नहीं पूरी होती ना। जिशान इजाज? मैम मैम है, वो मैसेज कर रहे। I'll mark the attendance after 5 minutes, ठीक है। मैम जिशान क्लास में है। ओके, अच्छा, यहाँ तक डेफिनेशन और यूसेज सबको क्लियर हो गया? जी यस जी मैम। जी। इकरा, you're present in the class? Ikra from BBSC. Yes, ma'am. Okay, Ikra, can you please explain us in your own words what is scaffolding and what are the usages of scaffolding? मैम ये टेम्परेरी यूज किए जाते हैं, मटेरियल्स जैसे पाइप्स वगैरह ये लगते हैं उस पे, ठीक है, जी। और ब्रिजेस वगैरह के लिए, रिपेयरिंग के हाँ लिए। जी, ठीक है। Okay, thank you so much, Ikra, for your contribution. Now we shall move to the next slide. अगर किसी को यहाँ तक क्लियर नहीं हुआ, प्लीज यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन। मैम एक चीज आपको बतानी ये बहुत इजी है वैसे। आप जब भी है, जी जी स्कैफोल्डिंग जो है ना, ये रेजिडेंशियल कमर्शियल के लिए यूज होते हैं। हाँ जी, बोथ, फॉर बोथ। ब्रिजेस Who के has raised this question? ब्रिजेस के लिए हेवी क्रेन्स यूज होती हैं। हेलो, जी मैम। हाँ जी, who's asking the question? मैम बिलाल है। मैम वही जो अच्छा, आप बिलाल, बता दिया आपको जी। हाँ जी, पूछें। मैम मैंने ये आपको बताना था, ये जो स्कैफोल्डिंग है ये रेजिडेंशियल और कमर्शियल में यूज होती है। जो ब्रिजेस है उसमें क्रेन्स वगैरह यूज होती हैं। नहीं, we have different kinds of scaffoldings. We have hydraulic scaffoldings too. आगे जब मैं आपको टाइप्स पढ़ाऊंगी ना, फिर वहां आपको क्लियर होगा कि कैसे ये और भी कंस्ट्रक्टिव उसके लिए यूज हो जाते हैं, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स है ना, जस्ट डोंट, अब आपने एक इमेज देख लिया, आप इसको ही ना विजुलाइज करें। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ स्कैफोल्डिंग्स आउट देयर। ओके, ठीक है मैम। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर कंट्रीब्यूशन। ओके, नाउ अच्छा, टॉप फैक्टर्स व्हाई कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री यूजेस स्कैफोल्डिंग। इट्स वेरी इजी वन, आप लोगों को सबको माशाल्लाह से मुझे लगता है पहले से पता है कि स्कैफोल्डिंग कंस्ट्रक्शन में क्यों यूज की जाती है। बहरहाल हम फिर भी दोबारा इसको जो है वो गो थ्रू करते हैं, सो दैट दिस इज इम्प्लांटेड इन योर ब्रेन एंड इट वुड बी वेरी इजी फॉर यू टू गिव एग्जाम देन। ओके, अच्छा जी, व्हाई top reasons why scaffolding is used in construction. Number one, ease of positioning. Arisha, please read this out. Ease of positioning. The positioning that scaffolding provides to workers is of great assistance. Scaffolding places workers straight in front of the parts of the ceiling or wall where they have to work, which helps them greatly. Scaffolding makes it possible for multiple workers to work side by side simultaneously. हाँ, एग्जैक्टली। तो बेसिक पर्पस इज ऑफ द ईज ऑफ पोजिशनिंग फॉर द लेबर्स, क्योंकि लेबर्स ने काम करना होता है, ठीक है, किसी भी कंस्ट्रक्शन में, किसी भी बिल्डिंग में। तो टू प्रोवाइड देम द ईज टू वर्क in a very convenient way, especially in the outer shell of the building, we provide scaffolding, ठीक है, and it can carry multiple workers at time, ठीक है। जी जी। Yes, ma'am. Okay, so now we'll move on to the next part, which is guaranteeing the safety of the scaffolding. Osama Bhatti, please read this out. Guaranteeing safety. At construction Hmm. locations, safety becomes the topmost priority. Thus, using scaffolding becomes imperative for creating a protected and safe workplace for workers who work for heights throughout the building construction phase.
Another vital benefit of using scaffolding is it offers a level and balanced working platform, which facilitates multiple workers to work on a site currently. They contribute to the faster construction of varied structures with scaffolding equipment. It becomes easier to maintain balance for workers, which will bring the likelihood of avoidable accidents. Exactly. Exactly. अच्छा जी, who will explain this point? It's a very easy one. वही बातें बार बार रिपीट हो रही हैं. Mohammad Zishan is present in the class. No, he's not, I guess. What about Akib? Akib, I saw his name. Akib? Akib? आपकी आवाज बहुत कम आ रही है. जी आकिब, आपको क्या समझ आया? इतना आसान. I guess Akib's audio is not that clear. Okay, Afzal. Afzal, what you have understood by this point? मैम इसमें जो उन्होंने सेफ्टी के लिए बताया है कि इसमें एट कंस्ट्रक्शन लोकेशन सेफ्टी बिकम द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी. आप रीड आउट ना करें, आप अपने वर्ड्स में बताएं. मैम ये इसमें प्रोटेक्शन होती है, उसका फोल्डिंग में इजीली वर्क होता है इसके साथ. जी जी बिल्कुल बिल्कुल जी. Especially when the laborers have to work at heights throughout the building construction phase. ठीक है? जी मैम. मैम इसमें बैलेंस किया होता है ना उन्होंने, बैलेंस मतलब हॉरिजॉन्टल वर्टिकल उन्होंने ना जॉइन की होती है इस चीज को. हाँ जी बिल्कुल. जी जी. जो पाइप्स होते हैं ताकि वो बैलेंस उसका ठीक रहे, वो मतलब हिले जुले ना. हाँ जी बिल्कुल. और अगर इसका जो है वो जॉइंटरी स्ट्रांग नहीं होगी तो ऑफ कोर्स फिर जो हमारी स्कैफोल्ड्स हैं वो वीक होंगे और वो लोड बेयर नहीं कर सकते. ठीक है जी. ओके. तो हमजा. सो गया हमजा मैम. हमजा प्लीज मार्क द अटेंडेंस टू. जी मैम वो अटेंडेंस कर ली है मार्क मैंने. आप कहती हैं तो मैं भेज दूंगा. ओके. एंड इकरा प्लीज मार्क द अटेंडेंस ऑफ योर क्लास. यस मैम. आई हैव दिस स्क्रीन रिकॉर्डिंग. मैं आराम से बाद में भी देख सकूंगी कि कौन कौन प्रेजेंट है कौन कौन नहीं है. ठीक है? यस मैम. ओके ओके. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड which is some other important usage. Okay, who will read this out? मैं Fatima Bisharat. यार उसामा दूसरों को भी चांस दो. मैम Shazay, please behave yourself. Fatima Bisharat. Fatima, are you present? I saw your name. Marine. Yes, ma'am. Okay, please read this out. Read the slide which is in front of your screen. Come on. Just 2 minutes, ma'am. Just 2 minutes. Okay, sure. Take your time. मैं पढ़ लेता हूँ मैम तब तक. मैम पढ़ लेता हूँ मैम. Osama Imran, okay, carry on. You can read this. Some other important usage. The right scaffolding systems are required not only to construct tall buildings, but also to carry out repairs and maintenance work of any high-rise apartment building. Scaffolding facilitates speedy completion of construction work as well as ensures the safety of workers and the common public at construction locations. Exactly. अब हमने एक नया पॉइंट यहाँ पे सीखा कि स्कैफोल्डिंग जो है वो सिर्फ कंस्ट्रक्शन में लेबर्स को फैसिलिटेट नहीं करती बल्कि पब्लिक को भी करती है, क्योंकि जो पब्लिक दैट इज मूविंग हियर एंड देयर, तो आपको पता है नीचे उनको प्रॉब्लम ना हो, ताकि इसलिए जो है ये एक तरह से सेग्रीगेट कर देती है. ठीक है? ऊपर पोर्शन में काम हो रहा है और नीचे आराम से जो है पब्लिक कैन मूव टू एंड फ्रो अपने उसमें. तो it basically facilitates many users on the site. It not only facilitates the laborers. ठीक है? और जिस तरह पहले पैराग्राफ में बात की हुई है कि हाई राइज बिल्डिंग अपार्टमेंट की मेंटेनेंस और रिपेयर के लिए भी अगर कल को आपको कोई क्वेश्चन आता है तो आपको पता होना चाहिए कि स्कैफोल्ड्स जो होते हैं वो सिर्फ कंस्ट्रक्शन के लिए यूज नहीं होते. दे आर यूज फॉर द रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ हाई राइज अपार्टमेंट बिल्डिंग्स टू, और फॉर एनी अदर आर्ट स्ट्रक्चर और फॉर एनी अदर टॉल कंस्ट्रक्शन थिंग. ठीक है? Okay, ma'am. Okay, moving on to the next slide.
मैम ये बार बार सिर्फ हाई राइज बिल्डिंग की बात तो हो रही है। नहीं नहीं, हाई राइज बिल्डिंग के साथ साथ आई एम मेंशनिंग कि ये अदर टॉल स्ट्रक्चर्स, आर्ट वर्क, ब्रिजेस के लिए भी यही चीज यूज होती है, ठीक है? सही है। नहीं मैम, मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर आपने एक सिंपल सादा कमरा भी कंस्ट्रक्ट करना हो तो 5 फीट 6 फीट से जब हाइट आपकी ऊपर जाएगी तो आपको जब लगाने पड़ेगी। हाँ जी बिल्कुल, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। इफ यू आर सपोज टू डू एनी, लेकिन उसमें ये होता है ना कि उसमें जरूरी नहीं है, इंटरनल काम के लिए जरूरी नहीं है कि स्कैफोल्ड यूज हो इफ द हाइट इज 5 फीट अबव से भी, ठीक है? स्कैफोल्ड ज्यादातर एक्सटर्नल काम के लिए ही यूज किए जाते हैं, जी स्पेशली अगर हाइट यूज कम हो तो आई डोंट थिंक सो कि इट्स यूज इंटरनली टू। Okay, moving on to the next slide. Types of scaffolding. Okay, Mehreen, now you can read this. Yes, ma'am. Spotted scaffolding. Spotted scaffolding, most commonly used type of scaffolding and can be used wherever possible. It is built from the base towards the top. This makes the scaffolding to be easiest and the most convenient to be used for construction. Fabricated frame scaffold in ladder jack scaffold. Here. Okay, so the basic type of scaffolding which is used is called supported scaffolding, ठीक है? जो आपको हर जगह नजर आती है जब आप कंस्ट्रक्शन कहीं हो रही होती है, व्हेन यू पास बाय तो आप देखते हैं कि उसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो है वो बीम्स के साथ जो है वो बेशक बैम्बू यूज किया होता है या कभी पाइप्स यूज किए होते हैं, उसको ज्वाइन किया होता है और लेबर्स उस पर खड़े होकर काम कर रहे होते हैं, तो दैट इज नोन एज दिस सपोर्टेड स्कैफोल्डिंग एंड दैट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्कैफोल्डिंग, ठीक है? Yes, ma'am. और दूसरी जो लेडर जैक आपको स्कैफोल्ड नजर आ रहा है, ये भी टाइप ऑफ सपोर्टेड स्कैफोल्डिंग है। बेसिकली ये जो स्कैफोल्ड होता है ना, ये ग्राउंड के साथ अटैच्ड होता है, ठीक है? इसमें ये दोनों आ जाती हैं, एक जो फ्रेम स्ट्रक्चर वाली स्कैफोल्ड है जो कॉमनली आप लोग हर जगह देखते हैं, दूसरी है जो लेडर जैक है, जो अभी जिस स्टूडेंट ने बात की थी कि हम घर के अंदर जो है अगर 5 फीट से ऊपर कमरे में काम कर रहे होते हैं तो तब भी हम स्कैफोल्डिंग यूज करते हैं। फैब्रिकेटेड जो स्कैफोल्डिंग है वो तो इटसेल्फ बड़ा एक्सपेंसिव एक मेथड है, वो आप सिर्फ एक अंदर कमरे के लिए पूरा सिस्टम नहीं लगा सकते, ठीक है? तब हम फिर वी ऑप्ट फॉर द लेडर जैक स्कैफोल्ड, ठीक है? जी मैम। जी ओके, सो द मोस्ट, अच्छा इसको कौन अपने वर्ड्स में बताएगा? हु इज गोइंग टू वॉलंटियर? हमजा, शौकत, आप बताएं। मैम ये इसमें बता रहा है कि जो सपोर्टेड स्कैफोल्डिंग है ये मतलब हर जगह नहीं यूज हो सकती, मतलब ये कॉमनली ये हर जगह यूज हो सकती है। अच्छा जी। और ये इजीएस्ट और कन्वीनियंट वे होता है मतलब कंस्ट्रक्शन के लिए। अच्छा ठीक है। और जो भी मैंने पॉइंट क्लियर किया था कि हम लेडर जैक स्कैफोल्ड क्यों इंटरनली ज्यादा यूज करते हैं, उसकी क्या रीजन है? मैम वो इसलिए कि वो जिस तरह अभी वसीम ने भी बात की थी कि वो जो कमरे में हमने करनी हो तो फिर उसके लिए हम ये करते हैं। हाँ, और हम फैब्रिकेटेड फ्रेमवर्क जो पूरा फ्रेम स्ट्रक्चर स्कैफोल्ड है वो क्यों नहीं यूज करते? मैम वो एक्सपेंसिव पड़ता आपने बताया। एग्जैक्टली, और एक इंटरनल रूम के लिए इतना बड़ा सिस्टम जो है वो इंस्टॉल करना तो इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव और यूजलेस टू, ठीक है? तो हम उसके लिए अदर ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस की तरफ फिर जाते हैं। जी ओके अच्छा, सपोर्टेड स्कैफोल्डिंग की हमने दो टाइप्स तो पढ़ी हैं कि फैब्रिकेटेड फ्रेम स्कैफोल्ड और एक लेडर जैक, ठीक है? आगे इसकी फर्दर टाइप्स पे देखते हैं। जो वुडन एंड बैम्बू जो पाकिस्तान में बहुत कॉमनली यूज्ड है, आप देखते ही होंगे कि वर्कर्स इस पे चढ़ के काम कर रहे होते हैं, ठीक है? जी मैम। जी ये आपको सारी जो टाइपोलॉजीज हैं ये आपको पता होनी चाहिए, आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। जी ठीक है। अच्छा, उसके बाद है जी ट्यूब एंड क्लैंप्स स्कैफोल्डिंग। कशमाला प्लीज रीड दिस। कशमाला जी मैम, जी पढ़ें जरा इसको। This is one of the types of steel scaffolding and consists of two parts including the tubes and clips, sometimes called couples. The idea is really simple, and one reason why it is so popular is because of the ease in assembly and disassembly. To erect the scaffold, you need to connect tubes together to make long runs and then connect the verticals and horizontals together with clamps built specifically for these tubes. ठीक है, तो so the two types of supported scaffolding we have gone through. One is
जो बैम्बू और वुडन होती हैं स्कैफोल्ड्स, और जो दूसरा है वो ट्यूब्स एंड क्लैम्प्स के, ठीक है। हम डिफरेंट जो है वो ट्यूब्स को हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली जो है वो ज्वाइन करते हैं, ठीक है। तो और इन दोनों का पर्पस सेम ही है, इसकी असेंबली और डिसअसेंबली जो होती है वो बहुत इजी होती है, और पर्पस जो है वो दोनों का सेम ही होता है, ठीक है। जहाँ पे हमने कंस्ट्रक्शन करनी हो, जहाँ पे हमने जो है स्ट्रक्चर की मेंटेनेंस और रिपेयर करनी हो, ठीक है। जी मैम। ओके, सो द अदर वन इज सस्पेंडेड स्कैफोल्डिंग, ठीक है। बहुत सी हॉलीवुड मूवीज में यू हैव सीन दैट ये सस्पेंडेड स्कैफोल्ड होता है, पूरा जो है स्ट्रक्चर होता है जो रूफ से जो है वो हैंग हो रहा होता है, और अक्सर जो वर्कर्स होते हैं वो विंडोज भी हाई राइज की क्लीन कर रहे होते हैं, और डिफरेंट पूरी बिल्डिंग का आउटर शेल जो है वो मेंटेन कर रहे होते हैं। देखा है आपने मूवीज में? जी मैम। जी मैम। देखा। हाँ, तो उसको सस्पेंडेड स्कैफोल्डिंग कहते हैं, ठीक है। ओके मैम। These scaffoldings are suspended from a roof when support to the ground is not at all possible. अब देखें ना, अगर आप अबू धाबी जाएं या किसी और जगह जाएं जहां पे आपको बिल्डिंग्स जो हैं वो 105 फ्लोर्स भी हैं, तो अगर आपने 102 फ्लोर में की विंडोज क्लीन करनी है तो हाँ, आप स्कैफोल्डिंग इतनी टॉल तो नहीं लगा सकते, ठीक है। तब फिर हम ये रूफ वाला सोल्यूशन यूज करते हैं जिसको सस्पेंडेड स्कैफोल्डिंग कहते हैं, ठीक है। यस मैम। ओके, नेक्स्ट इज रोलिंग स्कैफोल्डिंग। होती है? सॉरी, स्टैंडर्ड हाइट क्या होती है इसकी? देखिए जो स्टैंडर्ड हाइट होती है ना, इट ऑल डिपेंड्स कि आपका स्ट्रक्चर कैसा है, क्योंकि ये आपने खुद जो है वो असेंबल और डिसअसेंबल करता है, इसका कोई एक स्टैंडर्ड वो नहीं होता, ठीक है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द साइट एंड ऑन द कंस्ट्रक्शन एंड ऑन द बिल्डिंग हाइट एंड टाइपोलॉजी। ठीक है मैम। ओके, सो हु विल रीड दिस आउट? रोलिंग स्कैफोल्डिंग। अनस, आप पढ़ें। Anas, is Anas present? He asked the question first. यस मैम, हाँ जी प्रेजेंट। हाँ जी, अनस पढ़े जरा इसको, रोलिंग स्कैफोल्डिंग को। Rolling scaffolding. When a set of wheels is fitted to the scaffolding structure, it becomes a rolling scaffolding. This makes the scaffolding to be able to be shifted back and forth to adjust the scaffolding structure. Okay, so this type of scaffolding is commonly used in residential maintenance or repair work, especially internally जब कोई काम हो रहा हो, ठीक है। आपने अक्सर देखा होगा जब पेंट की एप्लीकेशन। कैन यू प्लीज टर्न ऑफ योर माइक? ये पेंट वाले भी करते हैं यूज ये वाली। एग्जैक्टली। तो जब इंटरनल कहीं भी यूज हो रहा हो तो आपको पता है कि आपने अक्सर देखा होगा कि पेंट वाले यूज कर रहे थे, एंड बेस्ट इसका जो यूजेज है या बेस्ट इसकी क्वालिटी ये है कि ये आराम से आप टू एंड फ्रो मूव करके किसी भी रूम में लेके जाके देन यू कैन स्टार्ट पेंटिंग, ठीक है। यस मैम। अब आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए कि रोलिंग्स के फोल्डिंग जो है वो इंटरनली यूज हो जाता है, जो सस्पेंडेड है वो कहाँ पे यूज होता है, जो सपोर्टेड है वो कहाँ पे यूज होता है, ठीक है। आई लास्ट क्वेश्चंस इन द एंड, ठीक है। बस अलर्ट होके आप लोग सुने। यहाँ तक क्लियर है सबको? आई होप ये बहुत इजी है टॉपिक। जी जी, ये काफी इजी है मैम यार। अच्छा जी, शान से हाइड्रोलिक मोबाइल्स के फोल्डिंग को पढ़ें। शान से हमजा, इज शान से प्रेजेंट? जी मैम प्रेजेंट है। शान से प्लीज रीड दिस आउट। मैम प्रेजेंट है शान से। मैम उसका थोड़ा सा मैसेज उसका मैसेज है कि हर थ्रोट हर्ट्स रियली बैड, मतलब उसका गला खराब था। ओके ओके, ठीक है ठीक है। मरियम फयाज इज प्रेजेंट? नो। ओके, मरियम एंड नरमीन आर नॉट प्रेजेंट। ओके, फातिमा बशारत। खुरैम, आप पढ़े इसको। खुरैम, मैं पढ़ दूं? वेयर इज खुरैम? मैम इसमें शो तो हो रहा है।
मुझे लगता है म्यूट करके वो जहमत नहीं कर रहे सुनने की। सो गए होंगे, सो गए होंगे शायद, पता नहीं। ठीक है, तो खुरान की भी मैम हम मैं जाग रहा हूँ। प्लीज रीड द स्लाइड। खुरान रीड द स्लाइड। मैम नजर नहीं आ रहा। अब आ जाएगा, आपको आ रहा होगा। हाइड्रोलिक लिफ्ट्स आर वंडरफुल। मैम मैं सुन रहा हूँ, मैं गाड़ी चला रहा हूँ तो गाड़ी लग जाएगी। आप गाड़ी रोक के पढ़ें, फिर ये लेक्चर अटेंड मैम करना था, सड़क आपको टाइम निकालना चाहिए था इसके लिए। मैम मोटरवे पे हूँ, कराची गया था, वहां से वापस आ रहा हूँ तो मैम गाड़ी So, चला रहा हूँ। ठीक है। वसीम आबिद। जी सुन रहा हूँ। जी वसीम आबिद, प्लीज रीड दिस आउट। Hydraulic mobile scaffolding. Hydraulic lifts are wonderful scaffoldings that are quite flexible in nature. कि ये जो हाइड्रोलिक लिफ्ट्स होती हैं ये फ्लेक्सिबल होती हैं. They can take a person and materials to various levels of a building. यानी ये एडजस्टेबल होती है, इनको आप बिल्डिंग के डिफरेंट लेवल पे एडजस्ट कर सकते हैं. दे आर इजी जी टू बिल्कुल, ऑपरेट एंड मेंटेन. ठीक है, इनको ऑपरेट करना और मेंटेन करना भी इजी होता है. एग्जैक्टली। अच्छा, ये जब वसीम बात कर रहे हो तो जो बाकी सुन रहे हो वो प्लीज अपना ऑडियो बंद कर दिया करें ताकि कोई डिस्टॉर्शन ना हो लाइन में। अच्छा, ये बहुत इजी है जो हाइड्रोलिक मोबाइल स्कैफोल्डिंग है, जो है ये लेटेस्ट जो है आपकी कह लें कि अब मेथड है कंस्ट्रक्शन में, ठीक है। और लेकिन इसका जो एक मुझे मतलब कि लगता है डिसएडवांटेज है कि इट कैन नॉट कैरी नंबर ऑफ लेबर्स एट अ टाइम, ठीक है। आपकी जो रेगुलर, अगर आप बहुत लार्ज स्ट्रक्चर हो तो देन यू कैन नॉट यूज दिस। आपको बहुत मैम एनॉर्मस ये किस्म की बहुत स्ट्रक्चर। कम यूज होता है, जिस तरह स्ट्रीट लाइट वगैरह को ठीक वगैरह करनी हो तो उसके लिए मैंने देखा यूज होता है ये. जी एग्जैक्टली अगर बहुत एनॉर्मस और जाइगेंटिक टाइप की आपकी बिल्डिंग और स्ट्रक्चर है तो देन यू कैन नॉट यूज इट, ठीक है। आपको यूजेज जो है बस फिंगर टिप्स पे पता होने चाहिए, सही है। मैम थैंक तो यू हमजा, थैंक यू मैम ये सामा फॉर योर कंट्रीब्यूशन एंड फॉर मैम बीइंग एन एक्टिव लिसनर टुडे। थैंक यू excuse मैम. me, मैम जी जी। मैम ये तो गाड़ियों के पीछे भी लगा, मैंने देखा है वो बड़े ट्रक्स के पीछे उसको ऊपर करके लाइटें साफ कर रहे होते हैं, तो ये तो उस पे भी लगा. इट हैज मेनी यूजेस हमजा। मैंने वैसे इसको नहीं देखा अभी इसके लिए, लेकिन यू हैव रेज्ड अ गुड पॉइंट, तो आई विल सर्च ऑन इट टू, ठीक है। जी मैम आकिब का मैसेज आया है, उसका कनेक्शन प्रॉब्लम है तो कहते हैं इसलिए मैं पार्टिसिपेट नहीं कर रहा रीडिंग सेक्शन में. वैसे मैं देख रहा हूँ सब कुछ. ठीक है, ठीक है, उसामा नजर आ रहा है हमें यहाँ पर. वो मैं इनको ओके। बता रहा हूँ मैं कौन यूज कर. कैन स्कैफोल्डिंग कोलैप्स। अच्छा जी, अब ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हमने इतनी बातें कर ली कि स्कैफोल्डिंग की यूजेस, उसके एडवांटेजेस, बट व्हाट इफ कोलैप्स एंड कैन इट कोलैप्स, तो हम उसके बारे में जो है ना वील स्टडी फर्दर। ओके, यू कैन सी द इमेज। अगर स्कैफोल्ड कोलैप्स कर जाए तो आप खुद सोचें कि क्या हाल होता होगा लेबर्स का, ठीक है। शाज़ेब, प्लीज रीड दिस आउट। बहुत dangerous. The safety of a scaffold is highly dependent upon being built right in the first place. When scaffolds fail, they fail in a catastrophic way and can cause many serious injuries and death depending on who is on or around it when it fails. Exactly. It can be very dangerous if the scaffolding is not जो है ना कंस्ट्रक्टेड इन अ प्रॉपर वे। बहुत इसके जो है वो डेंजरस जो है वो आउटकम्स हो सकते हैं और हर तरह के यूजर के लिए जो भी उस वक्त साइट में जो है वो मौजूद है, ठीक है। अब्दुल रहमान प्रेजेंट है। Yes, ma'am. अब्दुल रहमान, मैम अब्दुल रहमान प्रेजेंट है लेकिन उसके माइक का इशू है. ओके okay, so you can see how devastating the results are if scaffolding is not constructed appropriately, ठीक है। Yes, ma'am. Sorry, let me check. Okay. मैं भी 3 साल पहले गेरी भी तो थी ना जब तबेला शटरिंग कोलैप्स हुई थी, तो जिसमें 6 लोग थे जिसमें 3 चाइनीज की डेथ भी हुई थी. I do not know about this, लेकिन अगर आप कह रहे हैं तो फिर होगा ऐसे। मैम हुआ था 2-3 साल पहले ना, तबेला शटरिंग कोलैप्स में गेरी थी स्कैफोल्डिंग. Okay.
ये देखें, can you see how dangerous it is when it collapses? Okay, so who's going to read this out? Factors that might cause the collapse of an independent. अच्छा, आपको क्या क्या फैक्टर्स लगते हैं कि किस किस वजह से जो है स्कैफोल्ड कोलैप्स कर सकता है? मैम हवा से भी कर सकता है ये। मैम जल्जले मैडम बैलेंस ना लगी हो। के झटके आते हैं तो अच्छा, अर्थक्वेक हो गया, एक पॉइंट अर्थक्वेक हो गया, एक विंड हो गया, तीसरा क्या था? बैलेंस ना लगी हो, बिल्कुल स्ट्रेट ना लगी हो। बैलेंस ना हो, ठीक है, नाइस। ओवरलोड हो जाए, ग्राउंड पे सही ना उसको फिक्स किया हो, ग्राउंड में सही तरह उसको फिक्स ना किया। जॉइंट ना मैम सही हो, प्रॉपर बोल्टिंग ना हुई हो, उसको कसा ना हो। मैम तारगुम पारगुम चल गया, तारगुम पारगुम। We have got 5 points. अगर winds high winds हो, earthquake हो, सही से कंस्ट्रक्टेड ना हो, और लोड ज्यादा हो तो फिर भी लोड ज्यादा हो, एग्जैक्टली। और जॉइंट ना मैम My सही class हो। is very intelligent. They already know a lot about it. Good. मैम अगर वीक जॉइनरी हो तब भी ये कोलैप्स हो सकता है। Exactly, Mehreen, जी मैम exactly. वर्चुअलिटी से भी हो सकता है। मैम इसका मटेरियल कोई डैमेज हो सकता है। जी बिल्कुल। Okay, moving on to the next slide. तो अब कोई वो पढ़े जिसने नहीं पढ़ा हुआ? Anyone who wants to volunteer? Anyone from BBAC? Muzammil, is Muzammil here? मैम मैं पढ़ दूं? जी आप पढ़ दो किस्माला। यस मैम प्रेजेंट। मुजम्मिल पढ़े जरा इसको। जी ओवरलोडेड वर्क प्लेटफॉर्म, scaffolding pole built on soft ground, scaffold not tied adequately to the build. Madam, I will tight high winds, scaffolding trucks by mobile plant, scaffold connected by incompetent workers, scaffolding not inspected prior to use. Okay, so these are the major points. ठीक है, जैसे हमजा ने हाई विंड्स का पॉइंट एक एंटर किया था कि हवा से, बिल्कुल एग्जैक्टली इसमें एक पॉइंट बल्कि मिसिंग है जिसने अर्थक्वेक का मेंशन किया था। वेरी गुड पॉइंट। अच्छा जी, तो अब फैक्टर्स दैट माइट कॉज द कोलैप्स ऑफ एन इंडिपेंडेंट टाइड स्कैफोल्ड्स आर ओवरलोड वर्क प्लेटफॉर्म, अगर ओवरलोड हो जाए, ये भी किसी ने क्लास में पॉइंट मेंशन किया था। ठीक है, स्कैफोल्ड बिल्ट ऑन सॉफ्ट ग्राउंड, अगर नीचे ग्राउंड जो है वो सॉफ्ट हो हमारा, तो स्कैफोल्ड कभी भी इरेक्टली स्टैंड नहीं कर पाएगा। ठीक है, स्कैफोल्ड नॉट टाइड एडिक्वेटली टू द बिल्डिंग, बिल्डिंग के साथ अगर उसके कनेक्शंस वीक हो। स्टैंडर्ड्स नॉट अपराइट, अगर जो स्कैफोल्ड के स्टैंडर्ड्स हैं आप उनको ना फॉलो किया जाए। हाई विंड, स्कैफोल्ड स्ट्रक बाय मोबाइल प्लांट। अब देखें, हमने एक जगह पे स्टैंडर्ड जो स्कैफोल्ड होता है वो सारा जो है कंस्ट्रक्ट किया हुआ है, और अगर कोई मोबाइल प्लांट मीनिंग कोई भी व्हीकल, जो कोई भी ऐसी चीज जो मोबाइल हो और वो आके स्ट्रक कर जाए, तो ऑब्वियसली वो हमारा ऑलरेडी टेम्परेरी स्ट्रक्चर है, तो वो बहुत बुरी तरीके से इफेक्ट हो सकता है। ठीक है, स्कैफोल्ड इरेक्टेड बाय इनकॉम्पिटेंट वर्कर्स। अच्छा, अब ये जो स्कैफोल्डिंग करते हैं ना, ये हाईली ट्रेन्ड लेबर्स होते हैं। अगर रेगुलर लेबर्स करेंगे, रेगुलर वर्कर्स करेंगे, तो वो कभी भी जो है वो उतना स्ट्रांगली कंस्ट्रक्ट नहीं हो सकता। ठीक है, इट शुड बी इरेक्टेड बाय कॉम्पिटेंट वर्कर्स। ठीक है, स्कैफोल्ड नॉट इंस्पेक्टेड प्रायर टू यूज, जब भी स्कैफोल्ड की हम कंस्ट्रक्शन करते हैं तो वी शुड देयर इज अ प्रॉपर टीम टू इंस्पेक्ट इट। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स का जब हम ख्याल रखेंगे तो फिर हमारा जो स्कैफोल्ड है वो अपनी जगह पे इरेक्टेड रहेगा और कोई उस तरह का उसका जो है वो नहीं होगा डिसएडवांटेज। अच्छा, मैम की इसमें हैजर्ड्स अर्थक्वेक तो नहीं आना चाहिए क्योंकि मैम वो तो नेचुरल कॉज में होता है, तो उस तरह का स्कैफोल्ड तो गिर सकता है, लेकिन हाँ, किसी और भी गिर सकता है। लेकिन वो भी एक तरह का फैक्टर तो है ना, अभी तो हम हर तरह के फैक्टर की बात कर रहे हैं ना। तो मैम इसमें स्कैफोल्ड की गलती तो नहीं ना, मतलब कि वो तो एक नेचुरल कॉज है कि उसमें तो हर चीज गिरनी है, ऑब्वियसली बात है ये तो। हाँ नहीं, एग्जैक्टली। अब देखें हमने अब देखें ना, स्कैफोल्ड इरेक्टेड बाय इनकॉम्पिटेंट वर्कर्स, अब इसमें भी स्कैफोल्ड की तो गलती नहीं है ना, इसमें तो वर्कर्स की गलती है। चले, सही है। अच्छा जी, की हैजर्ड्स एसोसिएटेड विद यूज ऑफ स्कैफोल्ड्स। हाँ जी, उसामा इमरान पढ़े इसको। उसामा इमरान नहीं है मेरे ख्याल से। मैं पढ़ दूं? किसने कहा है ये? मैम मोहम्मद अफजल। हाँ जी, अफजल पढ़े। Falls from a scaffold during erection, fall from the work platform, object falling from the platform, collapse of structure. ओके, सो जो मेजर हैजर्ड्स आर कि अगर आपके वर्क स्कैफोल्ड्स के क्या क्या हो सकते हैं कि अगर आपके वर्क प्लेटफॉर्म से कोई गिर जाए।
So these are the points that you have to take under consideration while working on the platform. आपके जो workers होते हैं उनको properly एक training team guide करती है कि आपने scaffold पे किस तरह काम करना है, ठीक है? जी मैम। अगर ऑब्जेक्ट्स, अब देखें किसी ने 2 पेंट के बड़े डब्बे रखे हो स्कैफोल्ड के प्लेटफॉर्म पे और नीचे से पेडेस्ट्रियन गुजर रहा हो और उससे वो ना हैंडल कर सके और गिर जाए, तो आप खुद सोचें कि कितना नुकसान होता है, ठीक है? तो दीज आर द सम सेंसिटिव मेजर्स जिनको ख्याल रखना चाहिए व्हाइल वर्किंग वाया स्कैफोल्ड। ओके, फातिमा बशारत इज ऑनलाइन और नॉट? मैम प्रेजेंट है। हाँ जी फातिमा, प्लीज रीड दीज आउट। सामा ही अपना माइक म्यूट करना है। मेरा नहीं, अब्दुल्ला मुनव्वर का माइक खराब है। मुनव्वर साहब माइक म्यूट करना है। फातिमा बशारत? मैं वो कह रही थी मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम है। अच्छा, ज़िशान इजाज? उसका भी ऑडियो का इशू है। उनके पास भी माइक नहीं है। मोहम्मद ज़िशान? वो प्रेजेंट है। मोहम्मद ज़िशान, प्लीज रीड दिस आउट। ये चीजें बताती हैं कि कौन सा बच्चा कितना अलर्ट है और कितना नहीं है व्हाइल द लेक्चर। जी मैम। व्हाइल द लेक्चर डिलीवरी। सर आ रहा है कौन। उजैर? यस मैम। हाँ जी, रीड दिस आउट। ज़िशान का मैसेज मैम सिग्नल का आया। Recognizing hazard of the type scaffold they will be using, understanding the procedure to control or minimize hazards, how to erect, maintain, and disassemble the fall protection and falling object protection system, using the scaffold and handling material on the scaffold, maximum intended load and capacity. Employees need training and they do not minus the scaffold or do things that will cause it to lose its integrity. Training need to be specific to the scaffold. The worker will be used job specific issues would include power line clearness, surface condition. ओके, सो जब स्कैफोल्ड का यूज किया जा रहा होता है तो जो वर्कर्स होते हैं उनको इन पॉइंट्स पे ट्रेनिंग देना बहुत जरूरी है। और जो वर्कर्स आपके इधर कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करें, बीइंग एन आर्किटेक्ट, कल को जब व्हेन यू विल हायर सम वर्कर्स और स्कैफोल्डिंग पे काम हो रहा हो तो यू गाइस शुड नो कि जो आपका वर्कर है वो इन पॉइंट्स पे ट्रेंड होना चाहिए, ठीक है? जी मैम। उनको प्रोसीजर पता होना चाहिए, हाउ टू इंस्टॉल इट एंड हाउ टू यूज इट, और किस तरह इसको इरेक्ट करना है, किस तरह इसको असेंबल और डिसेंबल करना है, किस तरह की प्रोटेक्शन किया जाए कि कोई ऑब्जेक्ट उस सिस्टम से फॉल ना करे, ठीक है? इसकी लोड कैपेसिटी कितनी होती है और कितनी होनी चाहिए, कितनी एक्सीड हमें लोड नहीं करना चाहिए, ठीक है? प्रॉपर जो है वो ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्लस अगर कोई आप जब स्कैफोल्ड इरेक्ट कर रहे होते हैं कोई आपके कट पार्ट लाइंस आती हैं तो हमने उसको किस तरह हैंडल करना है, दे शुड बी वेल ट्रेन्ड ऑन इट। जब आप हायर करें किसी भी वर्कर को तो आपको ये सारे क्वेश्चंस उससे पूछने चाहिए और जिस तरह वो आंसर डिलीवर करेगा आपको तभी पता चल जाएगा कि वो ट्रेंड है या नहीं है, ठीक है? जी मैम। ओके, अच्छा जी। तो इससे पहले हम अब आते हैं थोड़े से जरा क्वेश्चंस एंड आंसर्स पे, ठीक है? अली अमजद, आर यू लिसनिंग? यस मैम। जी अली अमजद, हाँ जी, टाइप्स ऑफ स्कैफोल्डिंग बताएं जरा। कैन एक्सप्लेन? हाँ जी, हाँ जी, प्लीज कैन यू जस्ट टेल अस द नेम्स ऑफ टाइप्स ऑफ स्कैफोल्डिंग? टू टाइप्स के होते हैं। ओके ओके, और सुन रहे थे लेक्चर? यस मैम। ओके, बताएं फिर किस किस टाइप्स की होते हैं? याद नहीं आ रहा। बिल्कुल ठीक है। हाफिज खुबैब, ओके, टर्न ऑफ योर माइक। अली अमजद, टर्न ऑफ योर माइक। हाफिज खुबैब,
I guess some of the students are not even listening to the lecture. Muhammad Umar Khan. ये किसका mic open है? Please can you turn it off? Umar Rana, please can you turn off your mic? Yes, ma'am. Okay, where is Hubab? Hubab? किसका? Please turn off your camera too. मैम था तो यही, पता नहीं, अब मैं पूछती हूँ उससे। Okay, वसीम आबिद, यस मैम, सुन रहा हूँ। आप बताएं टाइप्स ऑफ स्कैफोल्डिंग के बारे में। मैम इसमें कुछ होती है सस्पेंडेड स्कैफोल्डिंग, कुछ स्टील की होती हैं, कुछ सिंगल होती हैं, कुछ डबल होती हैं, इस तरह करके इसकी टाइप्स काफी सारी अच्छा, होती हैं। ठीक है, थैंक यू। सरफराज अहमद, सरफराज अहमद, हाँ जी, स्कैफोल्डिंग के यूजेस हमें बताएं। प्लीज टेल अस अबाउट द यूजेस ऑफ स्कैफोल्डिंग। मैम ये हाई राइज बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन के लिए यूज हो सकती है। उसके अलावा अगर हमने क्लास साफ करना है किसी हाई राइज बिल्डिंग का तो उसके लिए यूज हो सकती है। जी, ठीक है। और पेंट वगैरह के लिए भी मैम यूज हो सकती है। ठीक है। हमजा शौकत, जी मैम। हाँ जी, हम इंडोर में कौन कौन सी स्कैफोल्डिंग यूज कर सकते हैं? मैम इंडोर में हम ये वो लेडर जैक वाली कर सकते हैं जी, और एक और पढ़ी है हमने। मैम, और दूसरी नहीं याद, ये याद है। रोलिंग। रोलिंग। हाँ जी, थैंक यू सो मच जी, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, तो इजी लेक्चर था आज का, ठीक है? जी बहुत ज्यादा। तो कशमाला, जस्ट गिव मी 2 minutes, I'll end the lecture, ठीक है? अच्छा, तो इस तरह है कि कैन यू सी द स्क्रीन? Nope. Okay, let me just Kashmala, just give me 2 minutes. Can you see it now? Yes, ma'am. Okay. So you have your quiz number 3 which you have to submit till your next class. मैं इसकी डेडलाइन दे दूंगी, ठीक है? मैंने सिर्फ इसको स्लाइड में इस वक्त इसलिए इनकॉर्पोरेट किया है ताकि मैं आपको बता दूं कि व्हाट आई रिक्वायर इन दिस क्विज। इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने किसी भी A4 साइज ब्लैंक पेज में कोई स्टैंडर्ड स्कैफोल्डिंग ड्रॉ करके उसके पार्ट्स को हाईलाइट करना है। यू कैन सर्च द इंटरनेट, ठीक है? एंड इसके आपके जो ड्राइंग है वो हैंड ड्रॉन हो, हैंड ड्रॉन ड्राइंग हो उसके फोल्डिंग की, उसमें आपने उसको ड्रॉ करके उसके डिफरेंट पार्ट हाईलाइट करने, लेबल करने हैं बस, ठीक है? एक ही ड्रॉ करनी है? हाँ, एक ही ड्रॉ करें आप, जिसमें उसके मैक्सिमम पार्ट्स आपने जो है वो हाईलाइट करने हैं। और इसकी जो सबमिशन टाइम है वो नेक्स्ट क्लास से पहले आपने करना है, वो मैं आपको डेडलाइन जनरेट कर दूंगी, ठीक है? आपने तरीका इसका क्या होगा कि यू जस्ट मैं आपको बता रही हूँ, यू हैव टू ड्रॉ द स्कैफोल्डिंग, ठीक है? उसमें उसको आपने लेबल करना है, देन यू हैव टू टेक द पिक्चर ऑफ इट एंड देन यू शुड अपलोड दैट ऑन द गूगल क्लासरूम। ठीक हो गया? जी ठीक है मैम। मैम पहले वाले को तो नंबर बता दें। थैंक यू। वो मैं आपको बता दूंगी। यू हैव टू स्केच, यस यू हैव टू स्केच। ओके मैम। कोई बात नहीं। ओके क्लास, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड आई होप कि आज का लेक्चर बहुत इजी था एंड द गुड थिंग इज कि बहुत इंटरैक्टिव लेक्चर था। यस मैम। You should follow the same pattern in the next class too, ठीक है? Okay, thank you so much. Okay, Thank you, ma'am. Okay, Allah Hafiz. Allah Hafiz. Allah Hafiz.